Good morning students. Today we discuss the civics chapter 4 growing up as boys and girls. See the first question, given statement are true or false, then support your answer with the use of an example. First question, all society do not think similarly about the roles that boys and girls play. Yes, it is true. The most societies the role men and women play or the work they do are not valued equally. They do not have the same status. It is supposed that the household works must be done by women while men do the office work. यानी कि जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर बॉयज और जो गर्ल अलग अलग रोल प्ले करते हैं तो उनमें सिमिलरिटी नहीं दी जाती या उन्हें सेम नहीं समझा जाता. नेक्स्ट, मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर सोसाइटी डज नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल व्हेन दे आर ग्रोइंग अप. यानी कि हमारी सोसाइटी है उसमें भेदभाव नहीं किया जाता जब बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो बड़े होते हैं. जैसा कि हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, यह स्टेटमेंट फॉल्स है. The distinction between boys and girls begins from a very young age. For example, both of them are given different toys to play with. Boys are usually given cars to play and girls dolls. Additionally, they were told how girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly और boys need to be tough. यानी कि सोसाइटी के अंदर शुरू से ही डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर, उनकी ड्रेस को लेकर, उनके टॉयज को लेकर, उनके बोलने के तरीके एक्सेट्रा को. मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन who stay at work do not. मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन who stay at home do not work. यानी कि जो महिलाएं घर पे रहती हैं वो काम नहीं करती. It's false because the responsibility of housework, that is looking after children, cooking, washing clothes, cleaning, cooking after etc. bear a lot of pressure and hard work. Even after that, this is not recognized as work and presumed as natural work of women. While women work right from morning to नाइट इन हाउस होल्ड ड्यूटीज. यानी कि जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वुमेन्स सुबह से लेके शाम तक घर में अलग अलग काम करती हैं, लेकिन फिर भी जो उनका काम है उसे प्योरिटी नहीं दी जाती. मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क दैट वुमेन डू इज लेस वैल्यूड देन दैट ऑफ मैन. यानी कि जो वर्क महिलाएं करती हैं उनको कम वैल्यू दी जाती है रेदर देन मैन. यस, इट्स ट्रू as men get paid for what they are doing for the office and earn the livelihood, while a woman who is working from morning to night in household duties are not paid for. The household work is concerned as naturally duty of women and thus is less valued than that of men. यानी कि जो मेन है उन्हें काम करने के बदले कुछ अर्न होता है, इसी कारण जो उनका वर्क है उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि जो वुमेन है उन्हें हाउस वर्क के बाद कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. रीड स्टेटमेंट, हाउस वर्क इज invisible and unpaid work. Housework is physically demanding. Housework is time consuming. Write in your own words what meant by the term invisible, physically and demanding, then time consuming. Give one example of each based on the household task undertaken by women in your home. यानी कि जो ऊपर शब्द दिए गए हैं उनके हमें अर्थ बता के एग्जाम्पल देनी है. Then first, invisible, the things which cannot be seen. Invisible का अर्थ जिन चीजों को हम नहीं देख सकते. The household work is invisible which can be seen only when it is not done. Next is physical demanding, demands hard work and efforts. Cleaning of floors, washing of clothes are physically demanding work. जिस वर्क के अंदर हार्ड वर्क लगे और एफर्ट्स करने पड़े उसे हम फिजिकल डिमांडिंग का नाम देते हैं. नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग, वर्क विच टेक्स अ लॉट ऑफ टू बी कंप्लीटेड. जिस काम को करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगे. कुकिंग इज टाइम consuming work. Make a list of toys and games that the boy typically play and another for girls. If there is difference between two lists, can you think the some reason why this is so?
Does this have any relationship to the role children have to play as adult? यानी कि हमने दो लिस्ट तैयार करनी है जिसमें जो टॉयज हैं वो लड़के और लड़कियों के अलग अलग हैं. टॉयज एंड गेम दैट boys typically play: cars, toy guns, cricket, football, hockey and kabaddi. Toys and games that girls typically play: kitchen set, doll, teddy, badminton, skipping. Reason: because mentality of society, यानी कि समाज की ये सोच है कि ये प्ले लड़कियों के लिए है और ये प्ले लड़कों के लिए. देन फिजिकली अपीयरेंस ऑफ बॉडी, कुछ गेम्स के अंदर ये माना जाता है कि ये गेम सिर्फ बॉयज के लिए है और ये गेम्स लड़कियों के लिए. ऐसे ही कुछ वर्क के अंदर ये माना जाता है जो स्ट्रॉन्ग वर्क है वो सिर्फ लड़के कर सकते हैं. द थॉट दैट गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली एंड बॉय नीड टू बी टफ. Yes, it does have relationship. The role of children have to play as an adult, as men are supposed to work outside in office and earn money, while women are supposed to be हाउसहोल्ड वर्क. ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसा सोचा जाता है कि बड़े होने के बाद जो मैन है वो बाहर का काम करेंगी और जो वुमेन है वो ज्यादातर हाउस होल्ड का वर्क करेंगी. वी आल्सो डिस्कस इन हिंदी. कुछ कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि वह सत्य हैं या असत्य हैं. सभी समुदाय और समाज में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते. आंसर: यह कथन सही है क्योंकि जिन समुदाय में समाजों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफी कम है या जो समाज रूढ़िवादी परंपरा से जकड़ा हुआ है उन समाजों में लड़के और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते. देन सेकंड आंसर: हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई भेद नहीं करता. आंसर: यह कथन सही नहीं है. हमारे ग्रामीण या नगरीय समाज में लड़के और लड़कियों के परिवेश में भेदभाव किए जाते हैं, भले ही ग्रामीण और नगरीय समाज में भेदभाव करने के अनुपात में अंतर हो. वह महिलाएं जो घर में रहती है कोई काम नहीं करती. आंसर: यह कथन सही नहीं है क्योंकि जो महिलाएं घर पर रहती है वह घरेलू कामों को करती है जैसे खाना बनाना, घर की सफाई करना, घर की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, लेकिन इन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं. आंसर इज राइट क्योंकि महिलाएं जो घर में काम करती हैं उन्हें पैसों में नहीं आंका जाता और न ही कामों से आय प्राप्ति होती है, इसलिए महिलाओं के काम को पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझा जाता है. देन नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका हमें अर्थ बता के एग्जाम्पल देना है. काम का अदृश्य होना, कोई काम दिखाई नहीं देता जैसे बच्चों की देखभाल करना. जब बच्चा काफी छोटा होता है उस पर हमेशा निगरानी रखनी पड़ती है और निगरानी रखने का कार्य कोई दिखाई नहीं देता. ऐसे ही जो घर के कार्य हैं वो भी दिखाई नहीं देते. सेकंड, शारीरिक रूप में थकने वाले घरेलू कार्य जैसे घर की सफाई, कपड़े की सफाई, खाना बनाना आदि कार्यों में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह काम शरीर को थकाने वाले होते हैं. नेक्स्ट, समय खप जाना यानी कि वेस्टेज ऑफ टाइम. समय खप जाने से अभिप्राय है कि घर के छोटे छोटे काम इतने अधिक काम होते हैं जिन्हें करने में दिन का अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है. कई बार घरों में नए नए काम बढ़ जाते हैं जैसे कि मेहमानों के आने पर कार्यों का बढ़ना. देन नेक्स्ट हमें लड़के और लड़कियों के खिलौने की अलग अलग सूची बनानी है जिसके अंदर लड़कों के खिलौने दिए गए हैं, देन लड़कियों के खिलौने दिए गए हैं और ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है. क्योंकि समाज में लड़के जब युवा अवस्था में पहुंचते हैं तो उन्हीं कामों को ज्यादा पसंद करते हैं जिसे वह बचपन में खिलौना के रूप में खेला करते थे, जैसे सेना में भर्ती होना, पुलिस ऑफिसर बनना, गाड़ी चलाना आदि कार्यों को करना पसंद करते हैं. इसके विपरीत लड़कियां युवा अवस्था में किसी भी कार्य के साथ साथ घरेलू जिम्मेवारी अब से निभाती है, जैसे गुड़ियां, जैसे लड़कियां जो ड्रेस वगैरह पहनती है और जो किचन सेट से खेलती हैं वही काम उन्हें आगे जाके करना पड़ता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ एनी कंफ्यूजन कमेंट मी.